students. In the last class, we have started a topic of your chapter 9 internal trade, retail trade. So retail trade is the last link of the distribution channel, as well as the retail trade refers to the sale of goods and services in the small lots. Okay, said they directly contact to the final customer, as well as they also act as a link between the wholesaler and the ultimate consumer. Okay, so the the retailer may be defined as the dealer in goods and services who purchase goods from the manufacturer or the wholesaler and sell it to the directly ultimate customer. Okay, and the person who carries these functions of the purchasing the goods from the manufacturer or the wholesaler and sell it to the ultimate customer is called the retailer. Okay, so we have also studied the features of the retail trade, that is retailer is the last link of the distribution chain. Retailer sells the goods or services directly to the consumers. Retailers deal with the variety of products. Retailers buy and sell a small quantity of goods. Retailer is generally located in the residential area. Retailer maintains a personal relation with the customers. Retailer may contact the customer on telephone, internet, TV or through his retail showroom, and retailer act as a middleman between the wholesaler and the customer. Okay, we have already discussed all the things and the services of the retailers. So retailers provide the services to the wholesaler as well as the consumer. So services which is provided to the customers or the consumers are the regular availability of the products, wide selection of the goods or the variety of products, new product information is provided to the customers, demonstration or the after sale services is also provided by the retailers, and they have also send the doorstep without the any extra charge. They provide the supply of the goods on the doorstep. Okay, doorstep of the consumer without charging the extra charge. Okay, yes, next is convenience in the buying. Okay, and the credit facility. The credit facility is also short term credit facilities also provided by the retailers, or sometimes retailers also provide the long term loans, and by the making the arrangement of the funds from the financial institutions and the different banks on the behalf of the customers. Okay, these facility is provided by the retailers to the consumer. And the next is services to the wholesaler and the manufacturer, means services which is provided by the retailers to the wholesaler as well as manufacturer. So these services are help in the distribution of goods, personal selling, enabling the large scale production, help in promotion, and the collecting market information. Okay, these all are the services which is provided by the retailers to the manufacturer and the wholesaler. Okay, so in the last class we have already discussed all the things. So now we are going to start the next topic, that is classification of retailers. Okay, how can we classify the different retailers? So yes, so retailer can be classified on the following basis. Okay, हम लोग रिटेलर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, और अलॉन्ग विद दी डिफरेंट बेसिस के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई और क्लासीफाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ साइज, सेकेंड इज़ प्रोडक्ट मिक्स, एंड थर्ड वन इज़ प्राइसिंग. So what is size? Retailer differ in the size from the small stores to big departmental store. Some customers prefer to visit large retail houses to get a wide variety under one roof, whereas some prefer small shops in the local area. Okay, so size. Retailer differ in the size from the small stores to big departmental store. Okay, जो retailers होते हैं वो क्या हैं, डिफ़र करते हैं इन दी साइज़ में कैसे कि किसी भी रिटेलर की कोई स्मॉल शॉप्स भी हो सकती है या कोई मॉल टाइप के या डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हो सकते हैं, लाइक बिग बाज़ार हो गया आपका, कंबल घर
और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐसे जो बिग मार्केट होते हैं, ऐसे ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे सारे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होती है। तो साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो भी रिटेलर है वो स्मॉल साइज़ का है और द स्मॉल स्टोर से रिलेटेड है, और दी बिग डिपार्टमेंटल स्टोर से कि वो बिग डिपार्टमेंटल स्टोर है। सो सम कस्टमर्स प्रेफर टू विजिट लार्ज रिटेल हाउसेस टू गेट अ वाइड वैरायटी। ओके, कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं, दे प्रेफर टू विजिट लार्ज रिटेल हाउसेस। ओके, वो क्या प्रेफर करते हैं कि लार्ज रिटेल हाउसेस में जाए, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाए, बड़े शॉप्स में जाए, जहाँ पे उनको गेट अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अंडर वन रूफ, कि एक ही छत के नीचे उन्हें प्रोडक्ट के वाइड वैरायटी मिले। मीन्स अगर वो कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसकी वाइड वैरायटी मिले। एंड सम प्रेफर टू स्मॉल शॉप इन देयर लोकल एरिया, और कुछ ऐसे होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं कि जो उनके एरिया में स्मॉल शॉप्स होती है वो वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। ओके, सो अगर कोई बिग शॉप्स पे जाना पसंद करता है, रिटेल हाउसेस पे, तो वो क्या करते हैं, वो लोग अपना वीकली और मंथली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन लोग उसको परचेज़ कर लेते हैं एक ही साथ में, जहाँ पे उनको सारे ड्रेस से रिलेटेड से कॉस्मेटिक से रिलेटेड एज वेल एज ग्रॉसरी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स उनको एक ही प्लेस पे मिल जाते हैं। तो लोग ऐसा भी प्रेफर करते हैं। और सम पीपल ऑल्सो प्रेफर टू गो टू द स्मॉल शॉप्स इन देयर लोकेलिटी, जो उनकी लोकेलिटी में है वहाँ पे जाना वो प्रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट मिक्स। Another criterion for the classification of the retail store is a type and variety of products kept in the retail showroom. The stores keeping a wide range of different line of products are called general stores or the departmental stores, whereas stores dealing with one line of product are known as single line or specialty stores. Okay, सो प्रोडक्ट मिक्स, इसका मीन्स है कि कोई भी शॉप पे कुछ ऐसी भी शॉप्स होती हैं जहाँ पे डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं, वाइड वैरायटी में भी होते हैं। मीन्स एक ही प्रोडक्ट के बहुत वैरायटी हो सकते हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट वैरायटी हो सकती है। और कुछ ऐसी शॉप्स भी होती हैं जो सिंगल लाइन प्रोडक्ट मीन्स सोल्ड आउट करती, मीन्स वो क्या कर सकती हैं, हो सकता है ड्रेस से रिलेटेड सारा, आउटफिट से रिलेटेड वो सारा सोल्ड आउट करे, एज वेल एज़ वो ग्रॉसरी से रिलेटेड करे, स्टेशनरी से करे, मेडिसिन से रिलेटेड करे। तो ये भी डिपेंड करता है कि अलग अलग जो रिटेल शॉप्स है वो किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट से डील कर रही हैं। ओके, सो सी हियर another criterion for the classification of the retail store is a type and variety of products kept at the retail showroom. ठीक है, अनदर जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं रिटेलर को वो कैसे है कि रिटेल स्टोर इज़ अ टाइप्स एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे बहुत टाइप्स के और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हों केप्ट एट अ रिटेल शोरूम, की शोरूम में वो सारे केप्ट किए हों। द स्टोर्स कीपिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, जो स्टोर्स होती हैं वो वाइड रेंज, बहुत ज़्यादा रेंज के, बहुत अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट रखते हैं ऑफ द डिफरेंट लाइन्स ऑफ द प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट क्या है वैरायटी रखते हैं। दीज आर कॉल्ड दी जनरल स्टोर्स और दी डिपार्टमेंटल स्टोर। उन्हें क्या करते हैं, मतलब वो एक ही शॉप पे डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट वैरायटी रखते हैं। ठीक है, जैसे शैम्पूज़ हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सारे क्या हैं, मीन्स एक ही चीज़ के बहुत वैरायटी है, डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट वैरायटी भी वो लोग रखते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज द जनरल स्टोर्स और द डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वेयर एज स्टोर्स डीलिंग विथ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट आर नोन एज सिंगल लाइन और द स्पेशलिटी स्टोर। और कुछ ऐसे भी स्टोर्स होते हैं जो क्या है, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स एक सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल वो मेडिसिन से ही रिलेटेड सारा प्रोवाइड करेंगे, उसमें वो पेन पेंसिल और डिफरेंट वो क्लोथिंग ये सब नहीं करेंगे, उनका क्या प्रोडक्ट होगा, सेम लाइन प्रोडक्ट होगा। और द स्पेशलिटी स्टोर मीन्स वो क्या है, कन्फेक्शनरी की शॉप्स होती है ना, जो स्वीट्स की शॉप्स होती हैं, ये सारी क्या है, कोई भी स्पेशलिटी होती है वो उसी से ही क्या करेंगे, डील करेंगे। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट वन इज़ प्राइसिंग। Generally, retailers add their profit margin and fix the prices of the products. Some retailers sell goods at the fixed price and some permit bargaining. Some stores located in the market charge a high price as they add a big profit margin to cover the cost of the maintaining showroom.
whereas some stores located in the residential area charge a very nominal price. Okay, so yes जनरली जो रिटेलर्स होते हैं दे ऐड देयर प्रॉफिट मार्जिन. वो कोई भी अगर कोई भी सप्लायर है या कोई भी बिजनेसमैन है तो वो कोई भी अपनी शॉप्स को ऐसे लॉस में तो वो ओपन नहीं करेगा, ठीक है. सो दे जनरली ऐड देयर प्रॉफिट मार्जिन. वो अपना जो प्रॉफिट का मार्जिन है उसको वो क्रिएट करते हैं एंड फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और वो उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट की प्राइस को वो फिक्स करते हैं. सम रिटेलर्स सेल गुड्स एट द फिक्स प्राइस. कुछ ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो अपने गुड्स को क्या फिक्स प्राइस में ही सोल्ड आउट करते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप पे जाते होंगे, वहाँ लिखा रहता है फिक्स्ड प्राइस. ओके, आप उसको जैसे डिफरेंट शॉप्स पे जाते हो, वहाँ पे क्या है वो ऑलरेडी वो मेंशन किए रहते हैं फिक्स प्राइस, तो आप कुछ भी बार्गेन नहीं कर सकते. अगर वो 100 रुपीज़ का है तो वो कहेंगे नहीं, आई विल सोल्ड आउट इन टू दी अप टू दी 100, कि वो 100 पे ही क्या करेंगे सोल्ड आउट करेंगे. वो आप उनको 99 बोलोगे, 98 बोलोगे, वो नहीं मानेंगे, बोलेंगे आप चले जाओ, आप मेरे को नहीं सोल्ड आउट करना है, ठीक है. वो कौन होते हैं? उनकी रिटेल जो शॉप्स होती है वो फिक्स प्राइस पे ही करते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं सम परमिट्स बार्गेनिंग. कुछ हम लोग शॉप्स पे जाते हैं जो स्मॉल शॉप्स होती हैं, और कोई वही शोरूम में चले जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी हमें बार्गेन नहीं कर पाते हैं. बट कोई ऐसी जो स्मॉल शॉप्स पे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि अरे कुछ ऑफ़ कर दीजिए कुछ %, तो वो क्या करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट 100 का है तो वो कहेंगे ठीक है 98 दे दो, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइसिंग में भी हम लोग कहीं पे भी क्या है, कहीं पे बार्गेनिंग कर सकते हैं, और कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, वहाँ पे हम बार्गेन नहीं कर सकते हैं. सम स्टोर्स लोकेटेड इन द मार्केट चार्ज अ हाई प्राइस. ओके, कुछ ऐसे जो स्टोर्स होते हैं, जो शॉप्स होती हैं, वो क्या होती है मार्केट में लोकेटेड करती है. मतलब जो कोई पॉश एरिया हो या एकदम जो मेन हार्ट ऑफ द सिटी, कि सिटी का वो हार्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, बहुत पॉश एरिया हो, वहाँ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं दे चार्ज अ हाई प्राइस. वहाँ पे प्राइस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. एज दे ऐड अ बिग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि वो क्या करते हैं जो भी रिटेलर्स होते हैं, दे ऐड देयर प्रॉफिट मार्जिन वेरी टू मच लार्ज. ओके, अपने वो प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बिग प्रॉफिट मार्जिन लेके चलते हैं, सो दैट दे कैन कवर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग शोरूम. जो शोरूम्स होते हैं उनके अच्छे अच्छे शोरूम्स होते हैं, उसमें वो लोग क्या है बहुत सारी लाइटनिंग करते हैं, बहुत सेल्समैन रखते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कुछ प्रोडक्ट को इतना कॉस्टली सोल्ड आउट करते हैं, जैसे उनका जो भी कॉस्ट डिफरेंट जो फैक्टर्स को उन्होंने लगाया है, मींस जो इलेक्ट्रिसिटी पे वो पे कर रहे हैं, आज वाला शोरूम पे जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, सेल्समैन को जो सैलरी दे रहे हैं, तो वो प्राइस को इतना ज़्यादा हाई कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट की कि वो उसका कॉस्ट को क्या कर सके, वहाँ से कवर कर सके, ठीक है. वेयर एज सम स्टोर्स लोकेटेड इन द रेसिडेंशियल एरिया चार्ज अ वेरी नॉमिनल प्राइस. और जो रेसिडेंशियल एरिया में, मतलब हमारे जो घर के आसपास होती हैं जो शॉप्स, वो क्या करती हैं बहुत नॉमिनल प्राइस ही, एक रीज़नेबल प्राइस ही चार्ज करती हैं. ओके, तो प्राइस इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि वो मार्केट एज वेल एज़ वो जो रिटेलर शॉप वो है कहाँ. अगर बहुत पॉश एरिया में है या बहुत मेन सिटी में है तो वो क्या करेंगे, शोरूम है उनका, तो वो क्या करेंगे बहुत ज़्यादा कॉस्ट को, प्राइस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, चार्ज कर देंगे, कि जो भी उनका कॉस्ट लग रहा है शोरूम को मेंटेन करने का, वो जो प्राइस वो चार्ज करेंगे उससे वो कवर अप हो जाए. एज़ वेल एज़ कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं जो हमारे रेसिडेंशियल एरिया में होते हैं, जहाँ हमारा घर होता है, एंड दे चार्ज वेरी नॉमिनल प्राइस. वो बहुत नॉमिनल प्राइस ही चार्ज करते हैं प्रोडक्ट्स का. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सर्विस लेवल. ओके, service level, there are many retail stores which offers additional services such as assistance to the customer, free home delivery, credit facility, whereas some stores go for the self service and no assistance is available. Okay, so there are many retail stores which offer additional service. Service level means कि ऐसे बहुत सारे retail stores होते हैं जो क्या करते हैं additional service भी charge करते हैं. दे ऑल्सो ऑफर दी एडिशनल सर्विसेज, मतलब वो एडिशनल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. ओके, कैसी, असिस्टेंस टू दी कस्टमर, कि बहुत हेल्प करते हैं कस्टमर्स की, फ्री होम डिलीवरी करते हैं कोई भी प्रोडक्ट का,
क्रेडिट फैसिलिटी दे ऑल्सो प्रोवाइडेड, की डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि कोई भी चार्ज तुरंत ना करके, पेमेंट तुरंत ना करके फ्यूचर में कर सकता है, डेफर्ड पेमेंट एंड एक्सेट्रा। वेयर सम स्टोर्स गो फॉर द सेल्फ सर्विस एंड नो असिस्टेंस इज अवेलेबल। और कुछ ऐसे भी स्टोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप डोमिनोज जाओ तो वहाँ पे क्या है, सेल्फ सर्विस होती है ना, ये तो नहीं है, या आप वो आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, डोमिनोज़ हो गया और पिज़्ज़ा हट, ये सारे क्या हैं, मैकडोनल्ड, ओके, ये सारे क्या है, सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो आपके पास आके आपको नहीं देते हैं, वो क्या कहते हैं, आप लोग खुद आओ यहाँ से लेके जाओ। तो कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं जो सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ओके, एंड नो असिस्टेंस इज अवेलेबल, वो कोई भी असिस्टेंस अवेलेबल नहीं कराते। और कुछ ऐसे भी स्टोर्स होते हैं वो क्या है, असिस्टेंस भी कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, फ्री होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा, ओके। Now the next one is a form of ownership. Some retail shops operate as sole proprietorship firm, some as partnership firm. The large departmental stores or the multiple shops prefer to operate as a company form business. Another common type of ownership is cooperative. Many other cooperative operate to provide goods at the reasonable price to their member. Okay, what it's saying? It says that the some retail shops operate as a sole proprietorship firm. Okay, कुछ we have already discussed the forms of business organization. हम लोग ने पढ़ लिया है कि क्या होता है। तो हम लोग ने पढ़े थे कि कुछ ऐसे भी शॉप्स होते हैं, रिटेल शॉप्स होते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, मीन्स दे आर द सिंगल ओनर ऑफ द फर्म, वो फर्म के सिंगल ओनर होते हैं। कुछ होते हैं वो एज अ पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, मतलब किसी को पार्टनर बना के, मीन्स वो अकेले ना काम करके 2 और मोर देन पार्टनर बन जाते हैं, उसके थ्रू वो ओनरशिप करते हैं, बिजनेस और फॉर्म को रेगुलेट करते हैं। द लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स और द मल्टीपल शॉप्स प्रेफर टू ऑपरेट एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। जो भी लार्ज स्केल पे होते हैं, मल्टीपल शॉप्स होते हैं या डिपार्टमेंटल होते हैं, शोरूम्स टाइप के, वो क्या होते हैं, दे हैव फॉर्म दी जॉइंट स्टॉक कंपनी टाइप, मींस वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। मतलब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू वो क्या करते हैं, बिजनेस को रेगुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अनदर कॉमन टाइप ऑफ ओनरशिप इज़ कॉपरेटिव। और कुछ ऐसे भी ओनरशिप हैं वो क्या है, कॉपरेटिव में भी करते हैं, कॉपरेटिव सोसाइटीज़ एज वी ऑलरेडी डिस्कस। तो उसके भी थ्रू क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस को और अपनी कंपनीज़ को ओपन करते हैं। सो मैनी कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑपरेट टू प्रोवाइड गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस टू द मेंबर्स। तो कुछ ऐसे अनदर कॉमन टाइप ऑफ ओनरशिप इज कोऑपरेटिव। सो मैनी अदर कोऑपरेटिव ऑपरेट टू बिजनेस प्रोवाइड गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस टू देयर मेंबर्स। और कुछ ऐसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, वो जो भी उनके मेंबर्स होते हैं उनको वो प्रोडक्ट को क्या है, रीज़नेबल प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो कुछ ऐसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, उन ग्रुप ऑफ मेंबर को जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे एट देयर वेरी रीज़नेबल प्राइस पे क्या करेंगे, वो गुड्स को प्रोवाइड करेंगे, ओके। So it is all about the classification of the retail. Next one is types of the retail trade. Okay, what are the different types of the retail trade? Okay, so next is keeping in mind all the above criteria, that is size, product mix, pricing and the service level. Retail trade can be classified into the following categories. ओके, कीपिंग इन माइंड ऑल दी अबव क्राइटेरिया, जो भी अबव क्राइटेरिया थी आपकी क्लासिफिकेशन की, कि साइज़ कैसा होगा, प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, सर्विस लेवल, ओनरशिप, ये सारे को हम देखते हैं। तो हम क्या है, रिटेल ट्रेड को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे, ओके। सो व्हाट आर द टाइप्स, दैट इज़ इटिनरेंट और द फिक्स्ड शॉप रिटेलर, ओके। रिटेल ट्रेड इज टाइप डिवाइडेड इनटू इटिनरेंट as well as fixed stop. Itinerant retailer means the one who traveling from one place to another place, means अपने गुड्स को वो सोल्ड आउट करने के लिए वो क्या करेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करेंगे। जो होते हैं ना डिफरेंट हॉकर्स और पेडलर्स, हॉकर जो होते हैं ना, वो सारे क्या हैं, एक जगह पे वो अपनी शॉप ना करके वो क्या होती है, उनकी मूवेबल होते हैं, मतलब वो अपने शॉप्स को मूव कर सकते हैं थ्रू दी डिफरेंट
hawkers के through or the peddlers के through, periodic markets के through, they can move their shops from one place to another place. Okay, so next one is fixed shop retailer. Fixed shop retailer means कि जो भी ऐसे रिटेलर जिनकी फिक्स्ड शॉप होती है, ऐसा नहीं कि उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना है, दे हैव देयर फिक्स्ड प्लेस. ओके, सो रिटेल ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू, itinerants and the fixed shop retailers. Okay, you can see here that the retail trade is divided into two, that is itinerants and the fixed shop retailer. So in the itinerant, itinerant is further divided into four, that is hawkers and the peddlers, periodic market traders, स्ट्रीट ट्रेडर्स और दी चीप जैक्स. मीन्स जो क्या होते हैं, जो स्ट्रीट पे होते हैं ना, स्ट्रीट पे या रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे शॉप्स लगा के बैठते हैं ना नीचे, उनकी क्या होती है, एक प्लेस फिक्स प्लेस तो होती नहीं है, दे कैन मूव. और जो स्ट्रीट पे होते हैं एज वेल एज पीरियोडिक मार्केट होता है, मतलब कोई भी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं, मतलब एक पीरियड होगा, अगर मंडे को शॉप लगती तो नेक्स्ट मंडे को लगेगी, फिर नेक्स्ट मंडे को लगेगी, तो एक पीरियोडिक मार्केट. और हॉकर्स जो होते हैं, जो the one who are moving from one place to another with the different products. So these all comes into the itinerants. And the fixed shop retailers is further divided into two, that is small scale shops and the large scale shops. So in the small scale shops we will discuss general store, single line store, specialty store, street shops, second hand good shops, second shops. But in the large scale shop we will discuss departmental stores, multiple shops, mail order retailing and automatic vending. Okay, so overall we can see that retailer trade is further divided into two, that is itinerants and the fixed shop retailer. ठीक है, itinerants का क्या होता है, कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होता है उनकी शॉप का, और फिक्स शॉप रिटेलर मीन्स जो उनकी शॉप है उनकी एक फिक्स प्लेस पे है. ओके, तो itinerants में कौन कौन आ जाएंगे, हॉकर्स एंड पेडलर्स, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स और दी चीप जैक्स. और फिक्स शॉप्स में भी टू टाइप्स के हैं, एक स्मॉल स्केल के शॉप्स हैं, एक बहुत लार्ज स्केल के शॉप्स हैं. तो स्मॉल स्केल शॉप्स में क्या आएंगे, जनरल स्टोर्स, सिंगल लाइन स्टोर्स, स्पेशलिटी स्ट्रीट शॉप्स, सेकेंड हैंड गुड शॉप्स और दी सेकेंड शॉप. और लार्ज स्केल जो होगा, जिनका बिजनेस लार्ज स्केल पे होगा, तो वो क्या होंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर, multiple shops, mail order retailing or the automatic vending machine. As you already know that due to COVID, the CBSE has reduced your syllabus up to the 30%. So in your business, in this chapter 9 internal trade, you may not to deal with the itinerants and the small scale shops. Okay, आपको क्या है, आपको पता है कि कोविड की वजह से क्या हो गया, CBSE ने आपके सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है. ओके, तो आपके बिज़नेस में अभी आपको ये itinerants के जो जितने पार्ट्स हैं, हॉकर्स, पीरियोडिक, स्ट्रीट ट्रेडर्स और जी चीप जैक्स, आपको नहीं पढ़ना है. और स्मॉल स्केल्स में ये जो सारे आते हैं स्मॉल स्केल शॉप्स में, जनरल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर, स्पेशलिटी, स्ट्रीट शॉप, सेकेंड हैंड गुड शॉप एंड सेकेंड शॉप, यू मे नॉट टू रीड. ओके, ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं. ओनली यू हैव टू रीड दी इन द फिक्स शॉप रिटेलर, यू हैव टू रीड ओनली द लार्ज स्केल शॉप्स. ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, बस लार्ज स्केल शॉप्स को ही पढ़ना है, जिसमें वी विल डिस्कस डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप्स, मेल ऑर्डर रिटेलिंग एंड द ऑटोमेटिक वेंडिंग. ओके, सो यू विल नॉट डिस्कस ऑल दीज पॉइंट इन योर बिजनेस क्लास 11. ओके, आपको नहीं डिस्कस करना है, आपको बस लार्ज स्केल शॉप्स को ही पढ़ना है. ओके, as well as in this chapter the one topic is also here, that is GST, goods and services tax, goods and services tax, GST. So you have also not read to the in your business studies, आपको आपके business studies में goods and services tax भी नहीं पढ़ना है. Okay, so we will discuss with the large scale रिटेलर्स. हम लोग लार्ज स्केल रिटेलर्स को ही क्या करेंगे, डील करेंगे. itinerants और स्मॉल स्केल शॉप्स को डील नहीं करेंगे. ओके, सो लार्ज स्केल रिटेलर डील इन द लार्ज स्टॉक
of the goods and the purchase goods in bulk. Features of the large scale retailers are, okay, you can see here large scale retailers जो होते हैं large scale पे जो work करते हैं, as you see the example of the big bazaar, okay. सो लार्ज स्केल रिटेलर डील इन द लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है, वो किससे डील करते हैं, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स की, जो भी उनके गुड्स का स्टॉक होता है वो बहुत लार्ज होता है, एंड दे परचेज गुड्स इन दी बल्क, वो क्या है लार्ज अमाउंट में और बल्क में क्या करते हैं परचेज को गुड्स को परचेज करते हैं, ओके तो क्या हो गया लार्ज स्केल रिटेलर हो गए, वो लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स को डील करते हैं, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स होता है उनके पास, एज वेल एज दे हैव परचेज द गुड्स इन दी बल्क, वो होल सेलर से गुड्स को क्या करते हैं बल्क अमाउंट में परचेज करते हैं, ओके, और एज वेल एज दे कैन ऑल्सो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द मैन्युफैक्चरर. सो दे हैव द फीचर्स ऑफ द लार्ज स्केल रिटेलर्स आर दे रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ओके. फर्स्ट वन इज देखिए जो स्केल है लार्ज रिटेलर्स का, ये लार्ज स्केल पे मीन्स इनका जो बिज़नेस है वो बहुत वास्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा है वो एक ही जगह पे. आपको पता है ये बिग बाज़ार पूरे ऑल ओवर द इंडिया है, तो इसका क्या है इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. इनका जो बिज़नेस है वो बहुत वास्ट होता है, तो दे रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट. उनको क्या है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, सो दैट दे नीड मोर एंड मोर कैपिटल. दे हैव लार्ज साइज़ शोरूम्स टू दी सेल गुड्स, ठीक है, उनको क्या चाहिए लार्ज साइज़ का शोरूम चाहिए जिसमें वो गुड्स को सोल्ड आउट कर सके. बिग बाज़ार आपको पता है कितना बड़ा शोरूम है जहाँ पे दे हैव दी सम लार्ज साइज़ ऑफ शोरूम्स टू सेल गुड्स. वहाँ पे वो क्या करेंगे उनके पास लार्ज साइज़ का शोरूम होना चाहिए जहाँ पे वो गुड्स को क्या करेंगे सोल्ड आउट करेंगे, एंड दे आर डीलिंग विद दी लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स के साथ डील करेंगे, एज वेल एज दे परचेज द गुड्स इन द बल्क अमाउंट में और लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को वो परचेज करेंगे, एज वेल एज दे ऑल्सो रिक्वायर द ह्यूज इन्वेस्टमेंट. उनको वो क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि लार्ज स्केल पे है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं है, वो ऑल ओवर द इंडिया रेगुलेट हो रहा है, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा ज़्यादा होगा, उनका बिजनेस भी बहुत वास्ट होता है. सो दे हैव ऑल्सो नीड द लार्ज साइज ऑफ शोरूम्स, large number of salesmen, make too much attractive so that they can also invest too much money for making their buildings or the showroom too much attractive. So they are generally located at the central place or in shopping centers. Basically जो ये होते हैं जो stores होते हैं लॉन्ग स्केल रिटेलर स्टोर्स क्या होते हैं, ये सेंट्रल प्लेस में ही शो होते हैं. मींस लोकेटेड क्या होते हैं सेंट्रल प्लेस में. मींस अगर कोई हार्ट ऑफ द सिटी है, कोई एक एरिया है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वो मतलब लोगों क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गो थ्रू करते हैं, वहाँ पे आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा होता है. एज वेल एज सेंट्रल प्लेस है, मतलब कोई भी सिटी का सेंट्रल प्लेस होता है जहाँ पे मेन प्लेस होता है, वहीं पे ये शॉप्स क्या आती है ज़्यादातर ओपन होती हैं. सो कैन जो भी अगर ये मेन सिटी में इसके मेन पॉइंट पे है तो पूरे सिटी के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये ईज़िली क्या हो रीच आउट कर सकें. ओके, सो दे आर जनरली लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस और इन शॉपिंग सेंटर्स, वो शॉपिंग सेंटर्स में होते हैं. द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विजिट दी शोरूम, जो लार्ज नंबर में जितने कस्टमर्स होते हैं दे कैन ऑल्सो विज़िट दी शोरूम्स, वो इस शोरूम्स को विज़िट करते हैं. एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ और टाइप्स ऑफ दी large scale retailers are the departmental stores, multiple shops or the chain store और the mail order retailing. ओके, लार्ज स्केल रिटेलर्स में क्या क्या आएंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आएंगे, मल्टीपल शॉप्स और मल्टीपल शॉप्स और दी चेन स्टोर्स आएंगे और दी मेल ऑर्डर retailing. Okay, so in this large scale retailer what we will discuss departmental store, multiple shops or the mail order retailing. Okay, so what we have studied in today's class, we will discuss that the different classification of the retailers, in which we have studied the retailer can be classified into the following basis, that is size, product mix, pricing, as well as service level, forms of ownership and types of retail trade.
So retail trade is divided into two, that is itinerants or the fixed shop retailer. Itinerants means the shops or the retailer, the one who are moving from or the traveling from one place to another. They do not have the fixed place shops. Okay, उनके पास कोई भी fixed place पे shop नहीं होती है. And the fixed shop retailer deals with it is further divided into the small scale shops or the large scale shops. Due to COVID or this pandemic, the syllabus has been reduced up to the 30%. So you not need to study the itinerants and the small scale shops. We will discuss only the large scale shops. So what are the different large scale shops? Large scale shops are they are deal in the large stock of goods. Large stock of goods के साथ deal करते हैं. As well as they purchase goods in the bulk. वो bulk में ही purchase करते हैं. And the features are that they require huge investment. उनको बहुत ज़्यादा investment करते हैं. They have the large size showrooms to the sell goods. वो goods को sell करने के लिए उनके showrooms क्या होते हैं, बहुत large size में होते हैं. And they are generally located at the main city of the or main place or the main center of the cities. And they can also large number of customer visit these showrooms. Okay, इनके showroom पे large number of customer they also visit. And the more common form of the types of the large scale retailers are the departmental stores, multiple shops, or the mail order retailing. Okay, so in the next class we will discuss the departmental stores. Okay, so it's all about your today's class. We will